ہندوستان اور چین کے معاملے کی طرف کے جو ایک سٹینڈ آف ہے، ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کا سٹینڈ آف ہے، جس سے میں سب سے پہلے اگر آپ سے شروع کروں جل صاحب، یہ ہے کیوں یہ معاملہ، یہ چین کی طرف سے اتنا شدید جو رد عمل ہو رہا ہے ہندوستان کی افواج کی طرف، اور یہ چین کے 4,000 سے 10,000 فوجی جو ہیں وہ اس وقت بتایا جاتا ہے کہ ہندوستان کے کنٹرول ٹیرین کرنا چاہ رہا ہے. کیسے آپ ہمارے ویورز کو سمجھا پائیں گے کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، اس میں 2-3 عوامل موجود ہیں. پہلی بات تو یہ کہ متنازع علاقہ اور بھارت نے یہاں پہ بہت بڑے پیمانے پہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا کام شروع کیا. سڑکیں بنانی شروع کر دی. تقریباً 60 کے قریب روڈز بن رہی ہیں جو انہوں نے 2022 تک مکمل کرنی تھی. اس کے ساتھ ساتھ برجز انہوں نے بنائے ہیں، ایک ایئر اسٹرپ وہاں پہ بنائی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنا کو یہ انڈیکیشن مل گئی کہ بھارت یہاں پہ اگریسو ڈیزائنز رکھتا ہے، اپنا بلڈ اپ کرنا چاہتا ہے کسی وقت کے اوپر. یہاں پہ ایئر کرافٹ یہاں سے آپریٹ کریں گے، سڑکیں بن گئی، لہٰذا یہاں پہ گنز آ سکیں گی، یہاں پہ ہر طرح کا ملٹری اکوپمنٹ لایا جا سکے گا. لہذا یہ ایک ایسا امر تھا جو کہ جس نے الارم کر دیا چین کو کہ یہ کوئی پرماننٹ قبضہ رکھنا اور یہاں پہ کچھ اگریسو ڈیزائنز موجود ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ یہ بھی مودی نے اپنی ایک تاریخ قائم کی کہ وہ یک طرفہ قدم اٹھانے کا عادی ہے اور کسی بھی صورت میں وہ نتائج کی طرف توجہ نہیں دیتا بلکہ وہ بڑھتا جا رہا ہے. جب آرٹیکل 370 انہوں نے ختم کیا اور یونین ٹیریٹریز بنانے کا اعلان کیا تو لداخ کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ چائنا نے بڑا واضح الفاظ میں کہا کہ جناب آپ ہماری سوورنٹی وائلیٹ کر رہے ہیں، لیکن بھارت نے اس کو رد کر دیا. اب اس کے بعد جب سی پیک کا قصہ آیا تو بھارت نے وہاں پہ مسئلہ کھڑا کیا کہ جناب چائنا ہماری سوورنٹی وائلیٹ کر رہا ہے. آپ ڈیم بنانے لگے تو پھر بھارت نے یہ مسئلہ کھڑا کر دیا. یہ ایک سلیکٹو قسم کی مورالٹی اور سلیکٹو قسم کی سوورنٹی کا قصہ جب سامنے آیا تو چائنا کو یہ واضح ہو گیا کہ بھارت اپنے معاملے میں تو سوورنٹی کو دیکھتا ہے لیکن دوسروں کی سوورنٹی کو پامال کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. جس علاقے میں چائنیز آگے آئے ہیں وہاں پہ تیسرا جو ایک پریشان کن وہاں پہ مسئلہ نظر آتا تھا وہ یہ کہ وہاں پہ تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پہ اگر ایریل ہم لیں وہاں سے اس کو ماپیں تو تقریباً 8-9 کلومیٹر کے فاصلے پہ کراکورم ہائی وے ہے جو پاکستان کی، جو آپ کہہ لیجئے کہ چین کے ساتھ ہمارا بیسک لنک ہے، اور سی پیک آگے بن رہا ہے وہاں پہ. تو ان حالات میں چائنا جو یہاں پہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور ایک اس کو اسٹریٹجک رستہ مل رہا ہے جو وہاں پہ اپنی اگر ساؤتھ چائنا سی میں اس کی آئسولیشن ہو تو اس کو باہر اوپننگ آپ دے رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. بھارت سب بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اگر پاکستان کی ٹیریٹری میں کرے نجم الدین شیخ صاحب کو بھی اس میں تو لانے دیجیے. یہ وہ چیزیں تھیں جو چائنا نے پریمپٹ کیا، ان چیزوں کی وجہ سے چائنا نے پریمپٹ کیا. نجم الدین شیخ صاحب کو بھی میں اس پہ لے آؤں. نجم الدین شیخ صاحب، بعض بھارتی مبصرین کو پاکستان کی سائٹ پہ نہیں، انڈیا کے اینالسٹ جو جیسے ہندو اخبار میں یہ تبصرے چھپ رہے ہیں کہ چین جو کچھ کر رہا ہے اس کی اسٹریٹجک ڈائمینشن میں پاکستان بھی انوالوڈ ہے، یہ ایک سرٹن پرو پاکستان قسم کی موو ہے چین کی. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے، اس کو آپ کو اسی مد نظر میں دیکھنا ہے کہ لداخ میں چین نے پہلے بھی کہا اور پھر کہا کہ صاحب آپ جو چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں یہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ ہو نہیں سکتی. تو جب اس کو آپ دوسری پہلو سے دیکھیں کہ اب یہ ووہان اسپرٹ جو تھی اس کو ہندوستان نے ووہان اسپرٹ بنی، پھر جب شی جن پنگ آئے ہندوستان میں آئے اور یہ کہا گیا کہ صاحب ہندوستان چاہ رہا ہے کہ ہندوستان میں انویسٹمنٹ ہو چین کی اور چین کے ساتھ رشتہ بڑھے اور ہمارے ساتھ صرف وہ ہمارا را مٹیریل نہ خریدیں لیکن ہمیں موقع دیں کہ ہم چین کے مارکیٹ کو ایکسپلائٹ کر سکیں. چین ابھی بھی ہندوستان کا یورپ کے بعد دوسرے نمبر پہ ٹریڈنگ پارٹنر تھا، اب شاید تیسرے نمبر پہ آ گیا ہے کیونکہ چین اب دوسرے نمبر پہ امریکہ ہے. لیکن یہ سوال اٹھتا ہے کہ صاحب اگر آپ کو اس طرح ڈیولپ کرنا ہے تو آپ کو یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ وہاں پہ آپ کی ووہان اسپرٹ اور جو سوال تھا کہ آپ کے ساتھ وہ کوآپریٹ کریں گے اس کو تو آپ نے رد کر دیا، کیونکہ آپ نے کہا کہ اب جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں
जिस पड़ोसी ममालिक में चीन सर फहरिस्त है, उनकी अगर कोई भी सरमायाकारी होगी हिंदुस्तान में तो उसके लिए एक खास लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यानी हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जो एक अजीब और गरीब तनाव की सी कैफियत है, एक बहुत सूरत हाल है। नजमुद्दीन शेख साहब, आप बता रहे थे ट्रेड का, आपको क्या लगता है या हिंदुस्तान वहीं खड़ा रहेगा जो आप कह रहे हैं? जो जल साहब ने हमें बताया कि बॉर्डर इंस्टॉलेशन बनाई जा रही हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं, एयर स्ट्रिप्स बनाए जा रहे हैं एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी में। और कल हमने देखा कि इंडियन मिलिट्री की जब हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात हुई तो जो अखबारात में छपा है हिंदुस्तान में वो ये है कि हिंदुस्तान बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। आपका क्या एनालिसिस? इसमें पीछे हटने का सवाल नहीं है। इसमें सवाल ये है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे किस तरफ चलने का इम्कान है और चीन की क्या जो पोजीशन है वो जस्टिफाइड है ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट और इज इट नॉट। अब मेरी नज़र में ये सारा मामला जो है इसका एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट है। अच्छा, वो लार्जर कॉन्टेक्स्ट ये है कि इस वक्त हिंदुस्तान ने अपने एक एग्रीमेंट की है रूस के साथ कि वो S-400 खरीदेंगे। मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि ये चीन के साथ सिर्फ नहीं है, इसका बड़ा कॉन्टेक्स्ट ये है कि चीन और अमेरिका का रिश्ता किस नौइयत का है और उसमें किरदार किस नौइयत का हिंदुस्तान प्ले कर सकता है। ये है कि इसमें जहां तक सीपैक को स्टॉल करने का चक्कर था या आप गिलगित बल्तिस्तान पे अगर कोई निगाह रखी हुई थी तो उसमें तो अमेरिका की मर्जी शामिल थी। आपको याद होगा कि अमेरिका ने पहले कभी बात नहीं की थी, लेकिन इसके बारे में उन्होंने कहा था कि जनाब ये सीपैक तो गुजर रहा है वहां पे एक मुतनाज़ा इलाके में से। ये आपको जहन में रखना चाहिए कि अमेरिका किसी न किसी शक्ल में इस मामले में इंडिया को सपोर्ट करेगा। वेरी इंटरेस्टिंग। आप वाकिफ होंगे हिंदुस्तान की एक्स फॉरेन सेक्रेटरी मिस निरुपमा राव ने एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स किए हैं जिसमें उन्होंने ये कहा कि चूंकि हमने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया कि हम चीनी पोजीशंस के करीब चले गए हैं, डीप हमने पेनिट्रेशन कर दी है, तो चीनी जो हैं वो उसकी वजह से रद्द अमल कर रहे हैं। और जो एक स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन एग्जिस्ट करता था राजीव गांधी की मीटिंग के साथ, जब चीन के साथ उन्होंने मीटिंग्स की थी 1988 में, वो स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन को मसला ये है कि आपने एक पोजीशन ली है जिसमें आपने समझा कि अगर चीन हमसे रिश्ता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम इधर अपने तौर पे अपने एडवांटेजेस कर सकते हैं। और अब चीन ने ये फैसला कर लिया है कि हिंदुस्तान ने अपने आप को अमेरिका के साथ इस हद तक बांध लिया है कि इस पे हमें लचक दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैं लार्जर पिक्चर पे इस वजह से फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि चीनियों के लिए ये अहम है कि हमने उनसे कहा था कि भाई आप अगर CPEC पे आपको मसला है तो हम CPEC का एक और रूट भी बना सकते हैं जो कि आपके रूट के मुताबिक हो। उन्होंने उनको दोहराया है कि साहब हमारी जो अग्रीमेंट है पाकिस्तान के साथ इस हमारे बॉर्डर के सिलसिले में, हमने उसमें कहा हुआ है कि दिस इज डिपेंडेंट ऑन द फाइनल सोल्यूशन, कि जो भी सोल्यूशन होगी कश्मीर की डिस्प्यूटेड टेरिटरी के सिलसिले में, अगर वो वही है जो कि हमने जो किया गया है तो ठीक, नहीं तो वी कैन रिवाइज इट in accordance with whatever is the decision with regard to Kashmir. लेकिन शेख साहब क्या कोई और रूट भी हो सकता था सीपैक का? क्योंकि जाहिर है सीपैक को चीन से जुड़ना है तो गिलगित बल्तिस्तान से गुजरना है, तो इसके अलावा कोई और अल्टरनेट रूट भी हो सकता था। लेकिन वो देखिए वो एक चीज कही थी, उसको फिर चीनियों ने विड्रॉ कर लिया था। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि वो कह रहे थे कि साहब हम सीपैक को रीजनल बनाना चाहते हैं और सीपैक का मतलब उसी वक्त निकलेगा जब सारा जो खिता है वो उससे फायदा उठा सके, जो उसके लिए मुफीद हो सके। और अगर इसमें इसकी जरूरत है कि हम एक और रूट निकालें तो हम निकालने को तैयार हैं। अब ये विड्रॉ हो गया था, चीनियों ने फिर उसको विड्रॉ कर लिया था, लेकिन द इश्यू वाज कि हम चाहते हैं कि सीपैक को पूरी तरह से सारे खित्ते को वो सर्व कर सके। ठीक है, सर्व कर सके। जल साहब जो एक इसमें अब सवाल है कि 2016 में से लेकर 18 19 तक 18 तक
लिमुआ साइन किया भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने, नरेंद्र मोदी ने, अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक डायमेंशन सारा कुछ, अब पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री, स्ट्रेटेजिक, तो इसका उस मिलिट्री माइंड पे क्या फर्क पड़ेगा? अब अमेरिका की मिलिट्री इसे कैसे देखती होगी? देखें, इसके दो पहलू हैं। एक तरफ तो अमेरिका में ये पॉलिटिकल रियलाइजेशन मौजूद है कि इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी अपनी खित्ते में भी और बाहर भी एक उसकी अपनी एक वैल्यू है, एक उसका अपना इम्पैक्ट है कि अब अगर ये अभी मैं चाइना के एम्बेसडर की स्टेटमेंट देख रहा था, जो न्यू दिल्ली में उनके एम्बेसडर हैं, उन्होंने कहा कि इंडिया चाइना के लिए एक अपॉर्चुनिटी है और चाइना इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है। हकीकतन हमें दोनों को अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ना चाहिए और एक बातचीत के जरिए हमें अपनी अपॉर्चुनिटीज को यूज करना चाहिए। उससे लगता यह है कि बातचीत तो होगी, ये वो चीज है जहां आके इंडिया को रिकंसाइल करना होगा और आइंदा के लिए चाइना कुछ कंडीशंस रखेगा कि आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ना करें। जब मुतनाज़ा इलाका है तो या तो बैठ के उसको हल करें, अगर हल नहीं कर सकते तो ये इसी तरह फिर रहने दें। ठीक है, हाँ, अच्छा ठीक। तो कंसेंसस हमारा भी वही है जो इंडियन इंडिपेंडेंट डिफेंस एनालिस्ट का है कि हिंदुस्तान को बुनियादी तौर पे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोसेस को रोकना होगा। शेख साहब, आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट जो हैं वो इसके बारे में ये मौक़िफ़ रखते हैं कि अगर ये सिचुएशन तूल खींचती है तो खित्ते का रीजनल जो कश्मीर के हवाले से स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप बदल सकता है। इसको गौर से देखने की ज़रूरत है। आपको लगता है, वो भी एक एक्स डिप्लोमेट है, आपको लगता है कि ये बात इतनी आगे जा सकती? नहीं, देखिए ये हम चीजों को खींचने की कोशिश करते हैं, इसको खींचने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जहां तक चीन का पाकिस्तान के मसला और चीन और पाकिस्तान का रिश्ता है और चीन का जो मौक़िफ़ है कश्मीर के सिलसिले में, वो वाज़ेह है, उन्होंने वो स्टेट कर दिया है और वो उस पर बिल्कुल पक्के रहेंगे। पाकिस्तान के साथ जो उनके दिफाई ताल्लुकात हैं वो बढ़ते रहेंगे और सीपेक को वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि वो अभी भी कोशिश ये करेंगे कि हिंदुस्तान ये समझे कि हिंदुस्तान चीन के साथ ताउन हिंदुस्तान के फ़ायदे में है और चीन के फ़ायदे में है, और ये दोनों पड़ोसी हैं, एक दूसरे के साथ उनको रहना है। आपके पेरेंट इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने इस पे खासी मुसलसल पोजीशन ली हुई है कि चीन बिल्कुल सही कर रहा है और चीन का जो रिएक्शन है इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे वो बिल्कुल सही है। ये आपके नॉलेज में होगा? हाँ, ये मेरी नॉलेज में है। देखिए, उसका इस पे बेरिंग है, लेकिन बेरिंग जो है मेरी नज़र में वो ये है कि इस वक्त चीन जो हमें सोचना चाहिए कि ये सूरत हाल कैसे पैदा हुई है और चीन हिंदुस्तान का अमेरिका से क्या तवक्कुआत हैं। उसमें एक तवक्को ये है कि आप S-400 जो हम खरीदना चाहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के सिलसिले में, और वो हम कहते हैं कि हम चाहते हैं चीन के खिलाफ, लेकिन इसेंशली वो चाह रहे हैं कि उनके बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस जो हो वो पाकिस्तान की जो डिटरेंट कैपेबिलिटीज़ हैं उसको हैंडल कर सके, और उसकी वजह से वो चाहते हैं कि ये S-400 की खरीदारी पे अमेरिका का जो एतराज़ है वो उठाया जाए, और इस वजह से वो अमेरिका के साथ दूसरी चीज़ों पे बिफोर आई क्लोज, योर लास्ट वर्ड ऑन दिस सिचुएशन। कितनी देर तक ये सिचुएशन चलेगी? नॉट वेरी लॉन्ग, आई थिंक। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि अभी मीटिंग्स कर रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब। दोस्तों, बहुत मेहनत करके हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। और सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे जो रेड बटन है सब्सक्राइब का, उस पर दबा करके उसके बाद जो घंटे की पिक्चर आएगा उसको दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड, इसका कोई चार्ज नहीं होता है, बिल्कुल फ्री है, तो आप जी खोल करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी राय दें। थैंक यू, धन्यवाद।